going to start the lectures. Okay, are you all are you comfortable? Okay, shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I think you have been seeing your syllabus. Okay, we'll complete your syllabus as well. Even more than that, we can have in a C++. Also, we can complete that. I will tell you that one thing, that I was an professional Java, C++ and Java trainer in a SID Infotech. Still, I am working over there as a freelancer. Okay, so the professional programming, okay, or we can say the programming which is required in a company. Okay, I will tell you how to write the code, how to apply the logic, okay, and basic things that we must know before going to start anything, right? If see, we'll take one example. If you want to ride a bike, okay, or if you want to take a ride on the bike, what is the initial we can say knowledge we require? Okay, means how to start the bike, right? How to take the gear, okay, how to pick up the clutch, and how to make a race. Okay, so these are the basic steps if you want to ride the bike. But while you go for the programming, okay, so you must know at least some simple English language knowledge. Okay, English language means what? We must know what is the English language, okay, and what is the programming language. Okay, so are you getting my screen? Yes, please. Are you okay now? Okay. Before going to start actual subject, okay, I want to know some basics from your side also. Okay, see, are you getting my screen notepad? Yes, Okay, sir. so first we'll see the C program basics, okay, in a 15 to 10 to 15 minutes. Okay, then we'll go for, okay, basics of what? C++. Okay, if you better know C language, okay, that will be very useful for the C++. If you don't know the C language, okay, no need to worry, we'll keep as simple as that. Okay, now my first question, okay, that English language, you know English language? Yes, yes, all of you, सबको इंग्लिश लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज, okay, and our programming language. Can you know the difference between, what is the difference between English language and programming language? Yes, please, anybody? This is a simple question. Sir, English language is used for human communication and programming language is used for computer communication. Okay, human language is used for sorry, English language is for human communication and programming language is for, okay, computer communication. Okay, that is your answer. But can you write, suppose have you know C program? Yes, C programming पता है आपको? Yes, please. Yes, sir. ओके, सिंपल मैं एक 2 लाइन लिखता हूँ सी प्रोग्राम के, ठीक है? इससे आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा व्हाट इज द सी लैंग्वेज, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड द क्वेश्चन मेन थिंग इज व्हाट, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग, ओके, इंग्लिश as programming language. Okay, this is my simple question, why we are not using English as a programming language, why there is need to write the separate programming language for, okay, computers. Okay, so this is a simple program. Okay, okay, so this is the simple C code. Are you getting or not? Yes, guys, are you getting? Okay, Yes, now sir. can you tell me where is an English and where is an program?
Is this program, is there any English words or English language is being used? Yes, please. Yes, can you tell anybody? Yes, guys. Okay. 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 You means this is not English language, right? This is English language and this is English language. Are you getting or not? I will tell you. This whole program contains all English words, right? Include is English word, stdio is English word, int is also English word, main is also English word. Okay, but we are not using English language as a programming language, right? This is the programming language. Yes or no? This is what? This is called C programming language. Yes or no? Yes, sir. Okay, so my question is what? Why we are not using an English language? So can anybody tell me what is the meaning of include? A normal meaning. Include means we are including something. Yes. Int means it is only one value, integer value. Yes. Main means from where we can have other execution point. Okay. There is no another meaning of this all these things. Okay. There is no another meaning of include. There is no another meaning of integer. There is no another meaning of main. Same like if you want to print the message. Okay. If you want to print the data, we are having what? A printf function. So can you tell me apart from this printf function, what is the another function or what is the another meaning of this printf function? Have you know? I don't think so. Yes please. मुझे बताओ प्रिंट एफ का दूसरा कोई मीनिंग हो सकता है क्या? यस नो सर. नो. ये रिटर्न कीवर्ड है, राइट? रिटर्न का कोई दूसरा मीनिंग है? रिटर्न का मीनिंग क्या है? इट विल रिटर्न समथिंग, आइदर कैरेक्टर, आइदर इंटीजर, आइदर डबल, आइदर फ्लोट, एनीथिंग एल्स. यस और नो? सो रिटर्न का दूसरा कोई मीनिंग हो सकता है क्या? जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना अपने पास, जितने भी हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, ठीक है, जावा हो, स्प्रिंग बूट हो, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज हो, डॉटनेट हो, जितने भी प्रोग्राम लैंग्वेज है ना, वो प्रोग्राम लैंग्वेज उसमें सभी में क्या होता है? इंग्लिश यूज होता है, बट इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती है. ये ध्यान में रखो. इंग्लिश की वर्ड यूज होते हैं पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती है. नाउ आई एम कम टू द, now this is a program language. Now we'll come to the English language. Why I'm telling this question is always asked in your interview. English language. So I am standing in front of bank. Okay, so can anybody tell me what is the meaning of this function, this statement? Yes please. Yes, anybody please? I am standing in front of bank. Yes, can you tell me what is the meaning of this one? Okay, मैं एक बैंक के सामने खड़ा हूं. Can you tell me what is the meaning of bank? Is there any only single meaning of bank? इस बैंक के कितने मीनिंग्स है अपने माइंड में? यस, फर्स्ट वन इज अ मनी बैंक, वी कैन से. यस और नो? बैंक बोले तो सबके दिमाग में क्या होता है? मनी बैंक, जहां से हम क्या कर सकते हैं? पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे ऐड कर सकते हैं. बराबर है कि नहीं? मेरे दिमाग में और एक बैंक है, दैट इज अ रिवर बैंक. रिवर बैंक मींस क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? यस, रिवर बैंक को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बैंक को? यस, क्या बोलते हैं उसको? है कि नहीं? नदी का किनारा. आर यू गेटिंग और नॉट? Yes guys, if you are not responding, how I can know that you are understanding or not? So guys, please respond. Yes, are you getting the meaning of this bank? Yes, sir. Yes, sir. What I am trying to say, our programming language
Okay, my question is what? Why we are not using English language as a programming language? This is your answer. Why? Because there are so many words are there in English language that are having more than one meaning. Are you getting or not? So इस बैंक की कितनी मीनिंग है? जैसे आप कंसिडर करना चाहो वैसे उसके क्या हुए मीनिंग है. बट अगर मैं यहाँ लिखूँ बाबा कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बैंक, ठीक है, दिस इज व्हाट अ सिंपल मैसेज दैट वी कैन से. ये सिंपल मैसेज है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. बट इफ आई वांट टू नो द मीनिंग ऑफ दिस ओके स्टेटमेंट, द कंप्यूटर विल गेट कंफ्यूज्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बैंक. ओके, दैट्स व्हाई द आंसर इज व्हाट. आंसर क्या होना चाहिए? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट. There will be a different we can say words are there which are having different meanings, okay, say, or we can say more than one meaning. That's why we are not using English language as a programming language. Got it, guys? Yes, Yes, sir. understood? Yes, sir. Okay, okay, so we'll move next. Now I will start the basics of the C programming language. Okay, I will tell you, I will ask one thing that you have to tell me. You know what is the different data types? Yes, please tell me fast. Yes, integer, float, double, char. Okay, double आपने यूज नहीं कभी किया होगा. Okay, so can you tell me what is the size of integer? Yes, it's how many bytes? 4 4 bytes. 4 bytes. 4 bytes. Okay, actually the integer the data size is depend upon which compiler that you are using. If you are using a Turbo C compiler, okay, in a Turbo C there will be only 2 bytes of integer. Okay, now now the new generation, all the compilers are having 4 bytes. Okay, फ्लोट का कितना हो सकता है? अगेन 4 बाइट्स. यस, डबल का क्या होगा? ये फ्लोट के डबल होता है तो ये होगा 8 बाइट्स, राइट. एंड कैरेक्टर का कितना होगा? 1 बाइट. 1 बाइट का मीनिंग कितना होता है? यस, 8 bits. 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट. ओके, तो मुझे ये क्वेश्चन है कि अगर अभी आपने बोला कि इंटीजर ये 4 बाइट्स है, कैन यू प्रूव दैट इंटीजर इज एग्जैक्टली 4 बाइट्स? कौन बोला आपको इंटीजर 4 बाइट्स है? मैंने तो नहीं बोला, आपने ही बोला मुझे. यस, किसने बोला आपको इंटीजर 4 बाइट का ही है? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ इंटीजर 4 बाइट का है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर इज अ 4 बाइट, you have to prove that. These are the basic questions, okay, that is always asked in your interviews. Tell me. Yes, please. Tell me. Can anybody tell how the integer is an exact 4 bytes? Can you prove that? A float is a 4 bytes. Can you prove that? Double is a 8 bytes. Can you prove that? A character is a 1 byte. Can you prove that? Yes. Can you prove that, all of you, or any one of them? But I can prove the integer is a 4 byte. Yes, sir. Sorry. Yes, sir, I can prove. Yes. How? Just tell me. Sir, at the time of memory location, integer always takes the size of example 100 and 104 and 108. Yes. Very good. That is you are the hero of the day. Okay. So the meaning is what? While we are using, suppose I am declaring integer a semicolon. What happens after the declare of integer a? Okay, it will create a memory location. So I will show you how it is going to be create a memory location. Okay, so this is my memory. Okay, this is my memory block. Are you getting my screen? Yes, I have opened the paint. Yes, guys. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so when you declare this line, okay, it will give 3 attributes of the variable. Attributes means property. Suppose I am asking to you, what is the attribute of student? Student के attributes क्या हो सकता है? कौन बताएगा? You are the student, right? So what are your attributes while you are going to the class? How your staff will know that you are in which class?
Okay, what is your name? What is your roll number? What is your mobile number? Are you getting or not? What is your mail ID? So we can say roll number, okay, name, mobile number, and class, right? These are the attributes of the students. So what are the attributes of the variable? Okay, first one, name of variable, right guys? इसका नाम क्या होना चाहिए? Okay, इसका एड्रेस क्या होना चाहिए? Okay, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? Are you getting or not guys? इस वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए? Because if you are not giving a name, how we can identify the name? Okay, what is the address? Where it is located? अभी मैं पूछूंगा, ये जो सपोज सुरेश नाम का स्टूडेंट है, उसका मुझे क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करना है. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एक तो उसका रोल नंबर 10 होगा, ठीक है, उसका नाम सुरेश है ही, ठीक है. बाद में उसका एड्रेस क्या हो सकता है? वो रहता है हड़पसर में, ठीक है. उसका मोबाइल नंबर हम लिख सकते हैं ..0888 हो सकता है, और उसका क्लास हो सकता है SC. Are you getting or not? So here we can exactly identify, okay, who is Suresh. Are you getting or not? So the A is what? The such a variable which are having three attributes. First one is the name of the variable, second one is address of the variable, and third one is a value of the variable. So okay, so one student has given answer is what? This is assigned as a memory location. Yes, the answer is correct. What? While we are declaring at this line number 14, okay, what will be happening? It will immediately create the memory location. And what is the size of memory location? Yes, please. इस मेमोरी लोकेशन का साइज क्या होगा? 4 होगा. ये 4 कैसे होगा वो भी बताता हूं मैं. नाउ अगेन आई विल क्रिएट अनदर वेरिएबल b. ओके, सो इन दोनों का जो डिफरेंस है लोकेशन का, वो क्या होगा? 4 बाइट्स का होगा. लेट मी शो यू. ओके, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल. ओके, लेट मी क्रिएट अनदर वेरिएबल b. आर यू गेटिंग व्हाट गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस, yes please. Are you getting or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so इसमें मैं लिखता हूं 25, okay, and इस पे मैं लिखता हूं 35. तो ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स मैंने अभी जो बताए हैं, ये तीनों एट्रीब्यूट्स कवर हो गए क्या? देखो, यस. व्हाट इज द ए? यस प्लीज, व्हाट इज द ए? ये ए क्या है? Integer. No, I am not asking about the type. I am asking about these three attributes. What is the A? Yes, it is a name of the variable. You can see over here. We are confidently say that it is an integer. We are not talking about the data. We are talking about these three. Why we are talking about this? Because we need to prove that A is a 4 bytes and B is also 4 bytes. Okay, I will write a simple code that we can know there are the 4 bytes. Right, so A is the name of the variable, means our first attribute is passed. Now this is the address 1000. Now this is the memory location address. This is a memory location address where your A is going to be found. So आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, डेल सब्जेक्ट पढ़ा है सबने? यस प्लीज. यस गाइस, आपने डेल सब्जेक्ट पढ़ा है? Yes or no? Are you getting my voice? Yes, sir. So आपने डेल सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं अभी? Yes, sir. ओके, सो डेल सब्जेक्ट में आपने माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पढ़ा होगा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर. ओके, उसमें 3 टाइप के बसेस होते हैं. पता है बसेस कौन से? एक होता है डेटा बस, खबर है, एक होता है एड्रेस बस, और तीसरा होता है कंट्रोल बस. ये डेटा बस मतलब our value, and address means where the data should be goes, or from where the data should be coming. Okay, so this is a physical location where we can have that address. Okay, so my next simple example I will show you. Okay, address means what exactly? Address means the physical location. Now if I open this data, okay, see this input file. Okay, can anybody tell me where this input file is located?
Yes, please. In the D drive. Yes or no? Okay. Where this ODT file is folder is present inside the. Yes, please. D drive. Okay. Okay. Where this payslip April 21 to 21 is present inside the D drive payslip folder. So can you tell that what is the address of payslip? Okay. Or what is the address of all these files inside the D drive and payslip? This is a physical location. So same thing. We joining. Okay. So same thing is happening over here. Okay. This is the address where your exact location of this A is going to be found. And now what is the remaining? That's the value of the variable. Okay. And last 25 is a value of the variable. Getting or not, guys? Okay. So now I have written 200 or 2000 over here. This is a random address. We are not going to say that this is the exact address. Okay. But for the first variable, we can say this is a random address. But for the second variable, we can exactly say what should be the address of the second variable. So we can say this is the address of the second variable. Okay. 1004. 1004. अभी समझ में आ रहा है ये 1004 कैसे आ रहा है? अब मैं आपको शो करता हूं. ठीक है. ये क्योंकि ये दोनों क्या है? यस, दिस बोथ वेरिएबल आर एज अ टाइप ऑफ इंटीजर. ओके. ये स्टोर कैसे होते हैं? कॉन्टिजियसली. कैसे स्टोर होते हैं? कैसे स्टोर होते हैं? ये कॉन्टिजियसली स्टोर होते हैं. कॉन्टिजियसली मतलब एक के बाद एक दूसरा क्या होता है? स्टोर होते हैं. एंड दिस वेरिएबल इज कॉल्ड होमोजेनियस वेरिएबल. होमोजेनियस मतलब एक टाइप के ही है. होमोजेनियस मतलब क्या होता है? ये दोनों एक ही टाइप के हैं. और एक टाइप के नहीं होते तो उसको बोलेंगे हेटेरोजेनियस. ठीक है. ये समझ में आ गया गाइस? If you are declaring a variable, the three attributes are going to be executed. Name of the variable, 1000 address of the variable, and 25 is the what value of the variable. Now the address, see, this is a keep in mind that the address of variable, which is very very important. The address of variable is always in a integer format. I am trying to say this is integer format because address cannot be, we can say address cannot be, okay, float, okay, or double. तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? फ्लोट और डबल का मीनिंग क्या होता है? फ्लोट का वैल्यू क्या रहता है? हाँ, फ्लोट का वैल्यू क्या रहता है? 5.5, okay, 25.22. These are the values of float and double. So can anybody tell me किसी घर का एड्रेस ऐसे कभी दिखा है? मेरे घर का एड्रेस है 1.5 नंबर. ऐसे कभी सुना है आपने? Yes? No, sir. Okay. No, sir. That's why your address of the variable is always in the format of integer format. मतलब कुछ भी हो सकता है. That may be negative, that may be positive. ये जो एड्रेस रहता है that may be what? Negative or that may be positive. It depends upon memory location. Getting or not? Yes, please. Yes, sir. Are you getting what I'm trying to say? Yes, sir. Okay. Now I want to show you that how the value of integer A and value of integer B or address of these both, that we can confirmly say that okay, both are type of an integer, and the address of and the we can say size is 4 bytes. Okay, depends upon integer. Okay, so today we'll show you inside only the online compiler, and from next lecture we'll have a Eclipse also. Okay, next. So जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अभी पहले C का प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ से C कंपाइलर सिलेक्ट करता हूँ. ठीक है, देखो यहां मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, इंटीजर a कॉमा b डिक्लेयर करता हूं. नाउ आई वांट टू चेक द एड्रेस ऑफ बोथ. ओके, सो मैं यहां लिखता हूं एड्रेस ऑफ a. ओके, एड्रेस ऑफ a कैसे निकालते हैं? कोई बताएगा? %b, ये आपको पता है ना?
व्हाट इज द परसेंटेज डी, व्हाट इज द परसेंटेज सी। ओके, इसको बोलते हैं फॉर्मेट specifiers. Okay, what are the format specifier for integer? Yes guys, percent. D. Okay, percent is a, we can say, evaluator. For float, yes, it's F, right? For double, it's again F. Okay, then character, yes guys, C. And if I'm taking a character array, then what we can say, S. Okay, Yes. okay, as you say, I will put the percentage, so you can have, देखो इस डबल हम जब भी लिखते हैं उसको परसेंटेज एफ क्यों लिखते हैं, बिकॉज दिस इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू इन अ डबल साइज। ठीक है, ये आपको अभी कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि हम इसका ज्यादा यूज सी प्लस प्लस में नहीं करते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा मेमोरी लगती है और उतनी ज्यादा मेमोरी हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट? सो आई एम ट्राइंग टू से, ये जो इंटीजर ए है इसका मैं एड्रेस प्रिंट करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने परसेंटेज डी लिखा है, ये ध्यान में रखो। ओके, सो एम्परसैंड ए। ओके, सो इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं और यहाँ क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, आर यू गेटिंग माय स्क्रीन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूटिंग? दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। ओके, लेट्स रन दिस। देखो मैंने पहले बोला था एड्रेस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मैं और एक बार रन करता हूं, क्यों रन किया मैंने, यहाँ वेरिएबल। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, आउटपुट मिल गया आपको गाइस? यस प्लीज। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और ये हमारे नोटपैड के अंदर डाल देता हूं। ये क्यों? क्योंकि समझ में आने के लिए। लेट्स सी, अरे सॉरी, कॉपी एंड पेस्ट। सो देखो पहला जो आउटपुट आया था वो माइनस में आया था, अभी ये कौन सा आ रहा है, प्लस में आ रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज? व्हाट इज द डिफरेंस? Yes, sir. 4 What by is the difference. difference? See, the last value you can see, the first 4 to 5 values are same. The last value is 92 and here is a 96. So what is the difference between 92 and 96? Yes? 4 bytes? Yes or no? Are you getting or yes or guys? Yes. Yes. सब समझ में? Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बेसिक है, सी लैंग्वेज का एक सिंपल बेसिक है जो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अगर ये पता नहीं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं आता है। समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है? अगर हमने फ्लोट का लिया तो फ्लोट का भी होगा। ठीक है, मैं फ्लोट का एक वेरिएबल ले लेता हूं। ठीक है, अभी ये बराबर है, इसमें कुछ चेंज करना है मुझे, ये प्रिंटफ में कुछ चेंज करना है, बताओ आप। यस प्लीज, मैंने अभी बोला है वी आर प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स नॉट द वैल्यू। सो ये परसेंटेज डी बराबर है। यस गाइस, परसेंट एफ। देखो इसीलिए मैंने यहां क्वेश्चन पूछा था आपको। ये देखो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, व्हाट वी आर प्रिंटिंग ओवर हियर, एड्रेस। यस प्लीज, बराबर है ना, हम एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं ना। यस। एड्रेस प्रिंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एड्रेस मैंने क्या बोला था, ऑलवेज एड्रेस किसके फॉर्मेट में होता है, वो इंटीजर के फॉर्मेट में होता है। और इंटीजर के फॉर्मेट के लिए हमारे पास क्या है, परसेंटेज दी है। हाँ, आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू यूज, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ओके, a इज इक्वल टू 2.5 f, ठीक है, और b इज इक्वल टू 3.5 f, ऐसे लिखता हूं तो मैं क्या करूंगा अभी, यस, एड्रेस एंड वैल्यू। अगर ऐसे लिखता हूं तो यहां क्या लिखूंगा मैं, परसेंटेज, और यहां क्या लिखूंगा, ओनली
ए लिखूंगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। यहां मैं लिखता हूं ऐसे, यहां लिखता हूं बी। तो पहला क्या प्रिंट करेगा? एड्रेस प्रिंट करेगा, और दूसरा क्या प्रिंट करेगा? उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। सिंपल एज सिंपल दैट। ओके, सो लेट्स रन दिस। देखो एड्रेस किसका मिल गया? ये का एड्रेस मिल गया, ठीक है। और देखो इस एड्रेस का डिफरेंस कितना आप ही बताओ मुझे। 4 बाइट। 4 बाइट्स, ठीक है ना? समझ में आ गया? यस और नो? यस अभी सर। देखो ये जो अभी और एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। ये देखो मैंने तो डिक्लेयर क्या किया था? 2.5 डिक्लेयर किया था। यस और नो? बट यहाँ कितना आ गए, कितने डॉट्स आ गए देखो ना, एक्स्ट्रा 5 डॉट्स आ गए। तो किसको पता है ये डॉट्स कैसे निकालना है? आई वांट ओनली 2.5 ओनली, नॉट मोर देन दैट। ये आगे के 50 मुझे नहीं चाहिए। यस, कौन बताएगा मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लीज रिपीट क्वेश्चन, प्लीज रिपीट क्वेश्चन। ओके, माय क्वेश्चन इज व्हाट, इधर गया आउटपुट। ओके, ये जो वैल्यू आपको दिखा रहा है, ठीक है, ये वैल्यू में क्या करता हूँ, यहां से कॉपी कर लेता हूं, अपने नोटपैड में डाल देता हूं, ठीक है। यहाँ मैंने वैल्यू क्या दिया था? ये ए का वैल्यू है, ठीक है ना। ए का वैल्यू क्या दिया था? 2.5 एफ दिया था, फिटिंग और नॉट? बट मैं क्या कर रहा हूं, मेरा आउटपुट क्या मिल रहा है? 2.5 मिल रहा है। मुझे 2.5 नहीं चाहिए, सॉरी 2.500 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही आउटपुट चाहिए। तो इसमें मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा कि मेरा आउटपुट 2.5 बन जाए? सर a इज इक्वल टू 2.5 ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं क्या करता हूं, इसको ये यहां से निकाल देता हूं, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। मैं रन करके शो करता हूं, क्या हो गया? ये एफ निकाला, a इज इक्वल टू सॉरी d 2.5 d। डी, ऐसे? नहीं हो सकता ना भाई, ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, फ्लोट और अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन हो गया ना। नहीं हो सकता। इट इज पॉसिबल और नॉट? अभी हमने प्रूव कर दिया पापा कि इंटीजर 4 बाइट का था, तो वो पॉसिबल कर प्रूव कर दिया हमने। सो हियर आई कैन राइट, सी दिस इज अ सिंपल आंसर। अगर आपको इसका जो वैल्यू है ये 2.5 वैल्यू, सिर्फ 2.5 चाहिए, ओके। सो आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स यू वांट? 1 और 2? यस प्लीज, कितने डिजिट चाहिए आपको आफ्टर डेसिमल? 1 चाहिए। तो ये जो हम यहाँ वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना, परसेंटेज, यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, 0.1 लिखो। क्या लिखो? 0.1 लिखो, आपको आपका आउटपुट मिल जाना चाहिए। अंडरस्टूड गाइस? Yes, अभी sir. अगर मुझे यहाँ Yes, लिखना है, मुझे यहाँ 2 डिजिट चाहिए आफ्टर डॉट, मतलब मुझे 3.5 की जगह 3.50 लिखना है, बराबर है ना? तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट और नॉट? यस, समझ में आ गया? सब बेसिक सब समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now last basic from your, now can you tell me what are the different types of variables? Types of variables, कौन बताएगा कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं? पहले ये बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, एंड देन टेल विच आर दोस। नंतर मला सांगा। यस, किसी को पता नहीं है क्या? आपने प्रोग्राम किया है ना सी पर? मैंने अभी तक C++ का कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, ध्यान में रखो आप। यस प्लीज। बताओ फर्स्ट। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूंगा, वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा फाइनल में। 4 types of variables. हाँ, ये
कौन से है बताओ? ओके, क्यार, इंट, फ्लोट एंड डबल। अरे भाई उसके बाद तो बहुत भी है, लॉन्ग है, ओके, लॉन्ग इंटीजर है, ठीक है, साइन है, साइन इंट है। आपने ये कभी देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, राइट? अनसाइन है, अनसाइन इंटीजर है, ठीक है। अनसाइन, आप जितने भी वेरिएबल आपने बोला ये वेरिएबल्स है, एक्चुअली दीज आर नॉट द वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, दीज आर द डेटा टाइप्स। मैंने ये इस यहां भी लिखा था, दीज आर व्हाट? डेटा टाइप्स, नॉट द वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स आर ऑलवेज इन 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं वेरिएबल्स? फर्स्ट वन इज अ ग्लोबल वेरिएबल, सुना है नाम कभी? यस सर। सेकंड वन अभी बताओ? लोकल वेरिएबल। अभी आ गया बराबर, लोकल वेरिएबल। और लास्ट कौन सा बचा है अभी? स्टैटिक। Yes, static variable. Okay, so static, we can say static may be global, okay, or may be local. May be local. Why I'm trying to say this may be local or may be global? Okay, static का एक यूज होता है जिसको हम ग्लोबल के साथ भी यूज कर सकते हैं और उसका हम लोकल के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक सिंपल प्रोग्राम लिखता हूं, ठीक है, वो आप मुझे बताओ, आप फ्रॉम दिस विच वन इज अ ग्लोबल एंड विच वन इज अ लोकल, ठीक है। मैं सिंपल stdio.h मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट, व्हाई वी आर यूजिंग, व्हाट इज दिस हैश, व्हाट इज दिस हैश, व्हाट इज दिस इंक्लूड, व्हाट इज दिस io.h, okay, that is my last question for today's class. Okay, then void fun1 into bracket, suppose integer a comma integer b, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं printf a, ओके, कॉमा b, ऐसे लिखता हूं सिर्फ, बाद में इसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आएगा मेरा मेन, ठीक है। मैं यहाँ क्या करूँ, कॉल करूंगा फन, यहाँ मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a कॉमा b, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ फन, ओके, यहाँ a का वैल्यू दे देता हूँ 10, b का वैल्यू दे देता हूँ 20, ओके, और यहाँ लिखता हूँ fun1 इंटू ब्रैकेट a कॉमा, ठीक है, 0 and then final is what? Close. Okay, this is a simple program. Okay, this is a function. Okay, this function is going to be called when this main going to be executed. Now can you tell me integer a and b which type of variable? ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। ओके, जिसने इसने ग्लोबल बोला वो क्लेरिफाई कर सकते हैं हाउ इट इज ग्लोबल, ठीक है। मैं और एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है, void fun2, ठीक है। मैं यहां कोई भी वेरिएबल नहीं लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा, printf, और यहां लिखूंगा a comma b, okay. Now my program will definitely give an exception or error, we can say. How? Because this function doesn't know what is a and b. जो दूसरे बंदे ने आंसर दिया, दिस इज अ लोकल वेरिएबल, ओके, द आंसर इज राइट। एंड व्हाट इज दिस वेरिएबल? दिस इज अ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल? Local variable. Yes, see, keep in mind while we are writing or while we are declaring any variable inside the bracket, curly bracket, okay, that is always is what? लोकल वेरिएबल। अभी बोलोगे सर ये तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर है, पर ये फंक्शन के अंदर ही है ना भाई, हम उसको यूज कहाँ करने वाले हैं, इस ब्रैकेट के अंदर ही यूज करने वाले हैं ना, ओके। तो इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल। इसका स्कोप कहां तक लिमिट है, इस ए एंड बी का इस फंक्शन तक ही लिमिटेड है। मतलब ये जो दो वेरिएबल क्या हो गए, इस फंक्शन को यहाँ लोकली रिप्रेजेंट करते हैं, लोकल यूज होते हैं। इस ए और बी को हम किधर बाहर, आउट ऑफ दिस फंक्शन वी कांट यूज। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है ना?
ये जो दो वेरिएबल्स है इसको हम कभी भी अपने लाइफ टाइम में इस फंक्शन के बाहर यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? यस प्लीज, दिस इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। Now, if you are trying to say the global variable always comes, okay, at the top. This is called the global variable. अगर मैं यहां यूज करूं, अगर मैंने यहां यूज किया c का वैल्यू, सॉरी ये b था पहले, यहां c यूज किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ a भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज a एंड b नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ मैंने c यूज किया कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने c का वैल्यू दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Are you understood or not, guys? Yes, please. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये हम पूरे प्रोग्राम में कहां भी यूज कर सकते हैं, उसका वैल्यू सभी जगह क्या होगा, एट ओनली वन इंस्टेंस इट इज अ सेम। अब उसको चेंज करोगे तो बाद में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया ना, व्हाट इज द लोकल वेरिएबल एंड व्हाट इज द ग्लोबल वेरिएबल। अभी इसको हम क्या बना सकते हैं, स्टैटिक बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या बना सकते हैं, स्टैटिक बना सकते हैं। इसलिए मैंने बोला लोकल स्टैटिक वेरिएबल में भी लोकल और में भी ग्लोबल वेरिएबल, ऐसे हम यहाँ कह सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब मैं बाद में बताऊंगा जब हम C++ पढ़ेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, एक वैल्यू फिक्स रहती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। हाँ, दूसरे रोटेशन में वो वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मतलब अगर आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और इसका जो वैल्यू वो वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। बीच में आपने चेंज भी किया तो भी चेंज नहीं होगा। जब उसका सेकंड रोटेशन आएगा, ओके, एट दैट टाइम व्हाइल वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस C और ABC, okay, it is going to be changed, not for the first time. Picture clear, guys? Yes? Yes, sir. समझ में आ गया? Now, my next question मैंने अभी पूछा था कि ठीक है, ये आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना है। Yes, please. Yes, sir. Okay, let me copy this one and paste into our compiler. इसमें मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। ये मैं स्टैटिक अभी निकाल देता हूँ। स्टैटिक एक सिंपल यूज भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा printf वैल्यूज, मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, यहाँ %d लिखता हूँ, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास अभी। %d, ये माइनस नहीं हो रहा है, ये डैश डैश ऐड कर रहा हूँ मैं, नहीं तो आप बोलोगे सर माइनस कैसे हो रहा है। कॉमा a कॉमा b कॉमा c, ठीक है। यहाँ मैं c को वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है, 30 दे देता हूँ। बाद में इसको चेंज करेंगे हम। यहाँ मैंने डायरेक्टली नहीं प्रिंट कर सकते हैं, परसेंटेज कॉमा c, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये fun2 बाद में कॉल कर देता हूँ मैं। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। देखो आ गया 10 20 एंड 20 आ गया। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी, हमने तो यहाँ 30 डिक्लेयर किया है, तो आउटपुट 20 कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ हमने उसको क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। लेट्स मी कमेंट आउट दिस वन, ओके, एंड यू विल गेट नोट। समझ में आ गया? सर फंक्शन तो कॉल नहीं किया। नहीं, दूसरा फंक्शन मैंने कॉल ही नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट फंक्शन कॉल किया। अगर आपको दूसरा फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ कॉल करो fun2 सेमीकोलन एंड देन हैव मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। गॉट इट गाइस? यस प्लीज। Yes, sir. Other students, are you understood or not? Yes, sir. Yes, sir. अभी ये हो गया, ये बेसिक पूरे मैंने अभी खत्म कर दिए हैं, और बहुत सारे बेसिक है जो हम C++ में भी देखेंगे। अभी मुझे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस हैश इंक्लूड। आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, पता है ना आपको। दूसरा कौन सा है, हैश इंक्लूड।
conio.h, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताओ व्हाट इज दिस IO, मैं फिर से न्यू में डाल देता हूं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, समझ में आएगा। सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस वन, ठीक है। अभी मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। ये भी एक अलग पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं। ये आपके कभी दिमाग में ही नहीं आया होगा कि एक्चुअली ये अलग अलग लोग हैं क्या। यस, मैं आपको इसका बताऊंगा, किसका, ये वाले का बताऊंगा। आप मुझे ऊपर का बता सकते हो। यस प्लीज। Preprocessor directive. यस, हैश इज अ प्री प्रोसेसर, मैं उतना ही बोलूंगा, दिस इज अ प्री प्रोसेसर। ओके, अभी किसी ने बोला डायरेक्टिव, ठीक है। मैं इसका भी बताता हूं, दिस इज द डायरेक्टरी वेयर योर फाइल्स आर बीन ऑलरेडी स्टोर्ड, ठीक है। दिस इज व्हाट एंगुलर ब्रैकेट, इसको मैं बोलता हूं यूयो हनी सिंह। यूयो हनी सिंह, आपके दो उंगलियां, दो मतलब दो हाथ के दो ऐसे चार उंगलियां करके देखो, यूयो हनी सिंह बन जाए, ठीक है। एंड देन दिस इज द हेडर फाइल। अभी बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अभी जो ये हमने प्रोग्राम देखा, मुझे बताओ इसके इस लाइन के लिए हमने कुछ कोड लिखा है। यस, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए हमने कोई एक्स्ट्रा कोड लिखा है क्या। जैसे हमने मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है, इतना सारा कोड लिखा है, पता है कि बराबर है कि नहीं। इस फंक्शन कॉल कर, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए ये 3 लाइन 4 लाइन का कोड लिखा है। ये फंक्शन 2 को एग्जीक्यूट करने के लिए ये 2 लाइन का कोड लिखा है। तो मुझे बताओ ये जो इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio लिखा है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कोई लाइन का कोड लिखा है क्या। No, sir. नो। यस, योर आंसर इज राइट, बिकॉज द प्री प्रोसेसर, प्री का मीनिंग क्या होता है, पहले से ये ऑलरेडी क्या है, ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसिंग में है और इसका प्रोसेसिंग हो चुका है। किसका प्रोसेसिंग हो चुका है, इस फाइल का। कौन से फाइल का, ये फाइल का नाम क्या है। यस, इस फाइल का नाम क्या होगा, stdio. So what is the meaning of stdio? It is a standard, yes guys, input output header file. What is the long form of this one, standard input output header file. Now what is the standard means, it is an international standard, जैसे ISI मार्क होता है, ISO रहता है, this same like it's an international standard. Input means we are taking the data from user, output means we are showing to the user. Now my next question on same thing, आपको कीबोर्ड पता है, कीबोर्ड सभी ने देखा होगा। यस प्लीज, कीबोर्ड का टाइप कौन सा होता है, QWERTY, दिस इज कॉल्ड QWERTY कीपैड, बराबर कि नहीं। अपने मोबाइल का जो कीपैड रहता है, अपने लैपटॉप का जो कीपैड रहता है, कभी आपने ऐसा कीपैड दिखा है जिसके कीज सीरियल रहते हैं, ABCDEFG, ऐसे कभी आपने कीपैड देखा है, कीबोर्ड देखा है जिसके की सीरियल रहते हैं, ABCDEFG HIJ ऐसे कुछ। तो यस प्लीज। No. No, sir. वाई, क्यों नहीं रहते ऐसे, क्योंकि उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसे बनाया गया है कि सभी जगह क्या होता है, एक ही क्या होता है, कीबोर्ड यूज होता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। Are you getting or not? That's why for input purpose we are using the keyboard. Are you getting or not? Now we are talking about the mouse also. मुझे बताओ माउस के कितने क्लिक्स होते हैं। ओके, आउट ऑलवेज 2, बराबर है कि नहीं। एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, बराबर है कि नहीं। लेफ्ट क्लिक जो रहता है हमारा, वो हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, और राइट क्लिक हम यूज कहा किसके लिए करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए। जैसे मैं यहाँ राइट क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टी दिख गई, और जैसे मैं लेफ्ट क्लिक यूज करता हूं तो क्या होता है, यस, सिलेक्शन के लिए यूज होता है। आर यू गेटिंग और नॉट। जो और एक रहता है मिडल वन, ये मिडल वन क्या रहता है, दिस इज फॉर ओनली स्क्रोलिंग, नॉट इज द यूज ऑफ दैट। जैसे मैं स्क्रोल कर रहा हूं ना, उसके लिए क्या होता है, यूज होता है। समझ में आ गया। सो आई कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, मतलब जो राइट क्लिक हो गया उसका मैं लेफ्ट कर सकता हूं, और जो
लेफ्ट क्लिक हो रहा है उसको मैं राइट कर सकता हूँ. दिस इज अ प्रॉपर्टी. ओके, सो दुनिया में ऐसा कभी माउस देखा है क्या उसको 10-12 बटन्स है और उसके अलग अलग यूज है? यस प्लीज, देखा है कभी? No, sir. No, that's why this is the input. अभी now last where comes to the output. मुझे बताओ आउटपुट के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? आउटपुट शो करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? मॉनिटर चाहिए होता है, यस और नो? हम अभी जो हमारे स्मार्ट टीवी है उसके ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है. पुराने जो टीवी थे सीआरटी, उसके ऊपर हम आउटपुट दिख नहीं सकते थे क्योंकि वो कंपेटेबल नहीं था. सीआरटी पता है ना आपको, कैथोड ट्यूब्स पता है ना, पुराने शटर वाले टीवी जो रहते थे, देखा है ना कभी? यस प्लीज. ये जो मॉनिटर थे इसके ऊपर हम आउटपुट देख नहीं सकते थे, इसके ऊपर सिर्फ हम मूवी वगैरह देख सकते थे क्योंकि इसका जो कैरेक्टर कोडिंग एनकोडिंग रहता है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका छोड़ दो. नाउ the monitors, these are also international standards. Smart TV are also international standards. Okay, so these are the input output that we are going to be used as an international standards. समझ में आ गया? यस गाइस, मतलब ये दोनों समझ में आ गया. अभी ये जो हेडर फाइल लिखा है हमने, इस हेडर फाइल के अंदर क्या रहती है? फंक्शनैलिटी अवेलेबल रहती है. व्हाट हेडर फाइल कंटेन्स? हेडर फाइल कंटेन्स व्हाट? कंटेन्स फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटीज हम बोलेंगे, फंक्शनैलिटीज. विच फंक्शनैलिटीज मैं शो करता हूं आपको. अभी हमने ये सिंपल प्रोग्राम लिखा है, देखो ये हमने क्या यूज किया है? प्रिंटफ यूज किया है. मुझे बताओ प्रिंटफ का जो बॉडी है, जो कोड है, वो कहां प्रेजेंट होगा? पता है आपको? ठीक है, और थोड़ा सिंपल करके बताता हूं. मुझे क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना है. तो मेरे पास कौन सा फंक्शन है यूजर का इनपुट करने के लिए? scanf है. scanf. यस, scanf इज टाइप ऑफ इनपुट, बराबर है ना? एंड printf इज व्हाट? इट इज टाइप ऑफ आउटपुट. ओके, अभी मुझे बताओ ये जो scanf का फंक्शन है, जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा है, कौन सा फंक्शन? ये जो फन फंक्शन लिखा है, इसका मैंने बॉडी लिखा है ना इधर, बराबर है कि नहीं? जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो इसके अंदर जाएगा, ये डिस्प्ले करेगा, बाद में वापस आएगा, ठीक है. अब जो यहाँ जब सपोज मैं दूसरा फंक्शन कॉल किया तो दूसरा फंक्शन के अंदर जाएगा, वो बॉडी प्रिंट करेगा, फिर से वापस आएगा. तो इसका बॉडी हमने लिखा है. तो मुझे बताओ ये जो प्रिंटफ का बॉडी वो कहां मिलेगा आपको? यस, ये हमने लिखा है प्रिंटफ का बॉडी. प्रिंटफ फंक्शन हमने लिखा है क्या? नहीं, ये प्रिंटफ फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है. कहां अवेलेबल है? इट इज इनसाइड दिस हेडर फाइल. ये तो सिंपल लॉजिक है, किसको भी सब देखने के बाद समझ में आएगा, इसको कोई बताने की जरूरत भी नहीं है. आर यू गेटिंग गाइस? यस और नो? तो ये है इनपुट, ये है आउटपुट. ओके, दैट्स व्हाई एंड दिस फंक्शनैलिटी व्हिच इज अवेलेबल इनसाइड दिस हेडर फाइल. ओके, एंड दिस h मींस इट्स रिप्रेजेंट द हेडर फाइल. ओके, नाउ ये दोनों मतलब ये कि देखो इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है उसको हम यूज कर रहे हैं, एंड ये फंक्शनैलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है. इसको बोलेंगे अब प्री प्रोसेसर फंक्शनैलिटी. मतलब ये जो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यूज किया ना, ये क्या शो करता है कि यहां हम क्या यूज कर सकते हैं? सिर्फ प्री प्रोसेसर किया हुआ ही क्लास यूज कर सकते, फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, नॉट अदर देन दैट. नाउ इंक्लूड इज व्हाट? वेयर इट इज प्रेजेंट. ओके, ये जो है स्टूडियो डॉट, ये जो हेडर फाइल है वो कहां प्रेजेंट रहेगी? इस डायरेक्टरी के अंदर. अभी मेरे पास ये मेरे कंपनी का लैपटॉप है, इसलिए मैं यहाँ C++ इंस्टॉल नहीं किया हूँ. ओके, next time while we are having my personal laptop over there, I will show you the structure of the C, we can say C और C++ programs. ठीक है, और ये एक फोल्डर रहता है जिसके अंदर क्या रहता है? ये हेडर फाइल रहता है, और इसको एक्सेस करने के लिए ये हम ब्रैकेट यूज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट आई कैन आल्सो यूज लाइक दिस आल्सो. आपने कभी ये देखा होगा, हैश include डबल कोट stdio.h, ऐसे कभी देखा है आपने? यस प्लीज. ठीक है, ये देखा नहीं है, फिर भी हम इसको यूज कर सकते हैं. अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट एंड दिस डबल कोट? दैट इज अ बिग डिफरेंस. अगर एंगुलर ब्रैकेट आप यूज करोगे
तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो फाइल है ये कंपलसरी प्रेजेंट कहाँ होनी चाहिए, इस इंक्लूड डायरेक्टरी में होनी चाहिए, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना गया है कि आप जो भी हेडर फाइल, प्रीडिफाइंड फाइल यूज करना चाहोगे तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डबल कोट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि जहां आपने ये प्रोग्राम, अभी सपोज मैं क्या करता हूं, ये प्रोग्राम में ऐसे सेव कर सकता हूं, ये डेमो डॉट सी प्रोग्राम में क्या करता हूं, ड्राइव के अंदर जाके या सीपीपी के यहाँ जाके ये मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ सेव करता हूं। ठीक है, व्हाट इज लोकेशन ऑफ सी, सीपीपी, यह देखो ये मेरा डेमो नाम का सी फाइल बन गया। ठीक है, अगर मैंने डबल कोड दे दिया यहां, तो इसका मीनिंग है कि ये जो स्टैंडर्ड फाइल है ना, ये भी कहां होनी चाहिए, इसी लोकेशन पे होनी चाहिए। ये मैं इसको क्या कर सकता हूं, सेव कर सकता हूं। अगर मैंने डबल कोड दे दिया तो ये जो स्टैंडर्ड फाइल ये क्या होनी चाहिए, उसी लोकेशन पे होनी चाहिए जहां आपका प्रोग्राम सेव है। कब कब होना चाहिए, जब आप डबल कोड यूज करते हो। आर यू गेटिंग और नॉट गाइस? यस प्लीज। यस सर। ओके, इसका मीनिंग क्या है, इंक्लूड इट्स डायरेक्टरी, इट्स अ प्रीडिफाइंड डायरेक्टरी। इंक्लूड की जगह हम हमारा नाम कभी भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रीडिफाइंड डायरेक्टरी है। हाँ, ये जो stdio.h है इसके जगह हम हमारा लिखा हुआ हेडर फाइल लिख सकते हैं। अगर मैंने लिखा इसे krishna.h, ठीक है, और मुझे इसको यूज करना है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं एज लाइक दिस, एज .h। तो मुझे बताओ ये कृष्णा हेडर फाइल किस लोकेशन पे आनी चाहिए, ये जो कृष्णा डायरेक्टरी है ये किस लोकेशन पे आनी चाहिए, मुझे बताओ। यस प्लीज। ये अगर मैं पहले बोलो कि जब आप एंगुलर ब्रैकेट यूज करते हैं तो इसका लोकेशन हमेशा फिक्स क्या होना चाहिए, इस फाइल के अंदर होना, इस फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखता हूं डबल कोड, तो मुझे बताओ krishna.h डायरेक्टरी कहां प्रेजेंट होनी चाहिए। यस प्लीज। सिंपल एज दैट, जहां ये प्रोग्राम आपने सेव किया है उसी लोकेशन पे ये फाइल भी होनी चाहिए जब आप डबल कोट यूज करते हो। आर यू अंडरस्टूड और नॉट? अगर ऐसे लिखो तो इस इंक्लूड डायरेक्टरी में होनी चाहिए, इस डायरेक्टरी में होनी चाहिए। अगर ऐसे लिखो तो ये इंक्लूड ही कर देगा, बट दिस लोकेशन शुड बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो समझ में आ गया व्हाट इज अ प्री प्रोसेसर। यस, व्हाट इज इंक्लूड, व्हाट इज एंगुलर ब्रैकेट एंड व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड फाइल। ठीक है, क्या होगा stdio। I will also tell you as an extra curricular, okay, how to create this header file. This is very very important. अभी समझ में आ गया from the basic what are the different data types, okay, okay, what is a variable, how we can declare it, what is address, address is a type of an integer, okay, it can't be a float, okay, we can have a student attributes like variable attributes, okay, how we are modifies the values, okay. Then next is what we have taken one example of the local global variable, because why I have taken this all basic things that we have been using to the C++ also। ठीक है, अभी C++ में और एक कंफ्यूजन वर्ड है, मतलब कंफ्यूजन है बाबा की, अब अगर हम यहाँ यूज करते हैं और यहाँ आपको क्या यूज करना पड़ता है, IO स्ट्रीम यूज करना पड़ता है। ओके, IO स्ट्रीम इज आल्सो सेम लाइक stdio.h। यहाँ ये जो stdio.h है ये क्या होता है, बाइट लेवल पे काम करता है, और ये क्या होता है एकदम लो लेवल पे, बीट लेवल पे काम करता है, एक एक बीट के ऊपर काम करता है। यह एक एक बीट के ऊपर काम नहीं करता है, ये पूरा अगर आपने 4 इंटीजर ले लिया तो डायरेक्टली क्या करता है, उसका एक बाइट पिक करता है, उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग क्या करता है, एक एक बीट के ऊपर काम करता है। अगर अभी यहाँ .h नहीं है, आप कौन सा भी प्रोग्राम देखो, हाँ टर्बो से भी यूज कर रहे हो तो .h लिखोगे, पर अभी जो कंपाइलर आ गए हैं, ऑनलाइन कंपाइलर बोलो या इक्लिप्स कंपाइलर बोलो, इसमें h नहीं है, तो h नहीं बोले तो इसकी फंक्शनैलिटी कहाँ गई, तो ये फंक्शनैलिटी का यूज कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आर यू अंडरस्टूड गाइस? यस सर।
किसको प्रॉब्लम इसमें अभी तक, मुझे कोई बताएगा इसमें अभी तक किसी को प्रॉब्लम है? दिस इज अ सिंपल, दिस इज द बेसिक्स दैट आई हैव टेकन फ्रॉम यू। एक लास्ट बेसिक बताऊं? यस प्लीज। Yes, sir. ओके, मैंने एक बताया, मतलब लास्ट में रखा था स्टैटिक वेरिएबल। अगर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं इंटीजर ए, ठीक है, मैं पहले इसको क्लेरिफाई करके लेता हूं ताकि मैं भी गलत ना हो जाऊं। देखो ये एडवांस कंपाइलर है, आपको ये शो करेगा। ओके, लेट मी शो यू। अभी देखो इंटीजर ए लिखा है मैंने, और यहां मैं क्या करता हूं, इंटीजर ए को प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। अगर आप टर्बो सी कंपाइलर यूज करते हैं, टर्बो सी इज वन ऑफ द ओल्ड एंड वेरी वेरी बेस्ट कंपाइलर दैट आई हैव एवर सीन, बिकॉज इसमें हम डिबगिंग वगैरह सब कर सकते हैं, कौन से लाइन पे कौन सा वैल्यू आ रहा है ये भी हम डिबग कर सकते हैं, ये ध्यान में रखो आप, ठीक है। टर्बो सी आई हैव सीन वन ऑफ द बेस्ट कंपाइलर, ठीक है, आई हैव सीन। सो इंटीजर ए का वैल्यू क्या होना चाहिए इधर? एज पर टर्बो सी इट शुड बी अ गार्बेज वैल्यू, क्या होना चाहिए? गार्बेज वैल्यू। बट सपोज मैंने इसी लाइन को अगर स्टैटिक कर दिया, क्या कर दिया उसको? स्टैटिक कर दिया। तो स्टैटिक क्या करता है, इस गार्बेज को हटा के उसको वैल्यू क्या कर देता है, वहां जीरो कर देता है। क्या कर देता है वो? जीरो कर देता है। दैट इज द डिफरेंस। समझ में आ रहा है? अभी ये मैंने आपको शो किया, यहाँ अभी देखो यहाँ आउटपुट जीरो ही आ रहा है, बिकॉज दिस कंपाइलर डजंट सपोर्ट फॉर गार्बेज कलेक्शन, इसलिए वो क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट जीरो दे रहा है। अगर ये टर्बो सी कंपाइलर होता तो यहाँ आपको क्या दे देता, वो गार्बेज, कुछ तो गार्बेज वैल्यू दे देता। अभी मैं इसको अगर यहाँ में स्टैटिक लिखो तो स्टैटिक आउटपुट भी देखो आप, वही सेम ही आएगा। यस, गॉट इट गाइस? मैं देख लेता हूँ ऑनलाइन टर्बो सी कंपाइलर मिलता है क्या मुझे ऑनलाइन, टर्बो सी कंपाइलर। नहीं, वही है, ये टर्बो सी कंपाइलर है ही नहीं एक्चुअली। नहीं, ऐसे टर्बो सी ऑनलाइन कंपाइलर मुझे नहीं लगता किधर मिलेगा, पर मैं आपको शो करूंगा कि एक्चुअली टर्बो सी कंपाइलर है क्या। मैं देख लेता हूँ एक बार इंटीजर ए, इतना क्यों स्लो जा रहा है ये? देखो यहाँ भी जीरो ही दे रहा है वो। इसका मीनिंग ये कि बहुत सारे ऐसे कंपाइलर हैं जिन्होंने गार्बेज कलेक्टर को यूज करना मना कर दिया है, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द एग्जीक्यूशन। गार्बेज कलेक्टर से क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ स्टैटिक नहीं लिखा हुआ, तो गार्बेज कलेक्टर सपोज वैल्यू आपको मिल गया कुछ तो 10 20 ऐसा कुछ तो वैल्यू मिल गया। अगर मुझे एडिशन करना है किसी वैल्यू का, तो सपोज मैंने उसको 10 ऐड कर दिया, 20 ऐड कर दिया, तो नया वैल्यू जनरेट हो रहा है ना। अगर मैं 0 को 20 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्ट 20 ही मिलेगा। ओके, दैट्स व्हाई दिस स्टैटिक कम्स इन अ पिक्चर। ठीक है, इसके ऊपर इतना ध्यान मत दे दो स्टैटिक के ऊपर, इसका दूसरा भी यूज बहुत सारे हैं, जब हम C++ पढ़ेंगे उस टाइम हम देख लेंगे। तो गाइस मुझे बताओ, जो हमने अभी तक बेसिक्स पढ़ा है उसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? यस, प्लीज आस्क मी वन बाय वन। यस,
और किसी और मतलब और आपको ये भी चेक करना है बाबा कि आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है वो भी मुझे पूछो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। यस प्लीज बताओ मुझे फास्ट। सर टाइमिंग के बारे में क्वेश्चन था। हाँ बताओ बताओ, वो डिस्कस करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तो आप फ्री कब हो लेक्चर लेने के लिए? मैं देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था प्रबल कि एक तो सुबह 9 बजे पॉसिबल है, 9 to 10, ओके, और शाम को 7:30 to 8:30, और सैटरडे संडे हम 2-2, 3-3 घंटा ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मतलब शाम के टाइम के प्रॉब्लम, मतलब शाम को टाइम आपका आप फ्री रहते हो शाम को ना, शाम को ना। हेलो सौरभ, शाम को आपका गिटार क्लास रहता है ना? नहीं, हम सुबह सुबह रखने वाले हैं ना। सुबह 9 to 11 और 9 to 12, लाइक दैट। सैटरडे संडे हम 2 घंटे एक्स्ट्रा, मतलब 1-1 घंटा एक्स्ट्रा लेने, 2-2.5 घंटे का लेने वाले हैं। आपको जल्दी खत्म करना है ना, दो दो 2 मंथ में खत्म करने के लिए बोला है मुझे प्रबल ने। तो फास्ट नहीं जाएंगे हम, जैसे आपको समझ में आता है वैसे करने वाले। आपका सिलेबस तो खत्म करने वाले हैं, पर जो एक्स्ट्रा चीजें C++ में जो कि आपके सिलेबस में नहीं है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। येस सर, बट 10 वाजता कॉलेज असतं ना. मग 8:30 ते 9:30 घ्यायचं का मग? 8:30 ते 9:15, 9:45? चालेल सर. आप बताओ, क्या सर? आप डिस्कस करो, मुझे आपका टाइम बताओ, पर 10 से पहले टाइम बताओ, ठीक है? यस सर, ओके. Okay. Okay, guys. So I think I am considering that you are getting well. Okay, you getting well understand of my today's lecture, demo lecture, you can say. And I have not been started the C++. Okay, I have just seen or taken the C language on the basic of the C language. Not been taken a much more lines of code program. Okay, these are some basics. There are much more basics. Okay, that you can find in the internet also, in the books also. Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये आपको शायद कभी मतलब इंटरनेट के ऊपर ज्यादा नहीं मिलेगा, कोई बुक में मिलेगा। एक आंसर करके यशवंत कंट का बुक है, दैट इज अ वेरी बेसिक सी प्रोग्रामिंग। इफ यू वांट टू लर्न अ बेसिक, होल बेसिक, दैट यू कैन गो विद द यशवंत कानेटकर सी बेसिक सी प्रोग्रामिंग, ठीक है? एंड इफ यू वांट टू गो विद द C++, सो वी आर हैविंग ई बाल गुरु स्वामी, ठीक है, ANSYS C++ program. So also you can refer that one. Yes, I will try to give my best. Okay. हॅलो सर. Yes, आदित्य. सर कॉम्पिटेटिव्ह प्रोग्रामिंगसाठी काय काय असणार आहे, म्हणजे काही काही इन्क्लूड होईल कशासाठी? कॉम्पिटेटिव्ह प्रोग्रामिंग? कॉम्पिटेटिव्ह प्रोग्राम आपण बघू ना. Yes, sir. यू आर आस्किंग व्हेरी बिग क्वेश्चन because in your syllabus no competitive programmings are available. मतलब competitive means what? There is a big program language, big programs are there, more than 100, 200, 300 lines, right? येस सर, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस आपण जाणार आहोत ना. यस आई विल। मैं वही बोल रहा हूँ कि सिलेबस तो आपका, मैं तो अगर मैं रोज 1-2 घंटा लूंगा तो आपका सिलेबस 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर कंटिन्यू लूंगा तो, ठीक है। और उसके बाद में जो अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस है वो भी मैं आपको पढ़ाऊँ। जैसे मैंने बोला कि हेडर फाइल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, उसको लिखना कैसे है, उसको सेव कहाँ करना है। अभी आपने इक्लिप्स में कभी यूज किया है C++? इक्लिप्स में कैसे उसको यूज करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब Okay, sir. स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा पता चलेगा बाबा कि C++ का स्टार्ट कहाँ है और एंड कहाँ। पहले मुझे सिलेबस खत्म करना है, ठीक है, पहले मैं सिलेबस खत्म करूंगा। मैंने नोट डाउन करके रखा है मेरे नोट में कि सिलेबस के बाद मुझे क्या क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। सिलेबस के बाद एक छोटा सा एग्जाम होगा आपका 50 मार्क का, ठीक है। उसके बाद
जो बचा कुचा है, जो सिलेबस में नहीं है वो होगा, और उसके बाद और एक 50 मार्क का एग्जाम होगा जो कि आपके क्लास मतलब ये जो आपका क्लास है उसके एंड के बाद होगा। और वीक में एक बार क्या होगा, आपको 2 प्रोग्राम दिए जाएंगे, ठीक है। वो प्रोग्राम आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो प्रोग्राम आपको इंटरनेट के ऊपर कहा भी नहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके सिमिलर मिलेगा, लॉजिक वाला मिलेगा, पर सेम प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। वो आपको खुद को ट्राई करना है, रन करना है। और मैं क्या करने वाला हूं, जब मैं ये असाइनमेंट दूंगा उसके नेक्स्ट वीक में, अगर मैंने सपोज आपको असाइनमेंट दे दिया संडे, तो नेक्स्ट संडे में क्या करने वाला हूं, पहला आधा घंटा और 15 मिनट, ठीक है, एक रैंडमली बच्चों को पूछूंगा कि आपने प्रोग्राम किया है, आपने बोला यस, तो आपका स्क्रीन शेयर करके मैं देख लूंगा कि आपने प्रोग्राम किया है कि नहीं किया है। ठीक है गाइस? सर अँड फी पेमेंट कसं करायचं? हाँ, पहले जब हम कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मुझे एक्चुअली पता चलेगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, okay, then we'll give the payment details to you, then you have to pay. First time you have to pay 1,500 and the remaining you have to pay after 1 month, right? I'm not forcing to pay whole amount, okay, because if you go to the other classes they are collecting whole fees first and then come to the class. I'm not doing that. I will take only for 1,500 first and then we'll collect 1 month after. Yes guys? सर डेमो फक्त आजच होता का? काय काय? सर डेमो लेक्चर फक्त आजच होता का? अजून पाहिजे का तुला डेमो लेक्चर? नो सर, आय एम जस्ट आस्किंग. ओके, एनिथिंग एल्स? तर रेकॉर्डिंग करणार आहे का? कसं आहे, आपलं अकाउंट हे बिझनेस अकाउंट नाही आहे रे. मी रेकॉर्डिंग करू शकतो, पण तुम्हाला देणार कसं मी? कारण रेकॉर्डिंग जर केलं तर त्याची जीबी मध्ये फाईल तयार होते आणि जीबी मध्ये फाईल अपलोड कसं करणार मी? मी प्रबलला पेनड्राईव्ह मध्ये वगैरे देऊ शकतो, तो तुम्हाला पास करू शकतो, असं करू शकतो मग. हो सर. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, पर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर वो चेंज करना पड़ेगा, जूम के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गूगल मीट है यहाँ सिर्फ बिजनेस अकाउंट को ही रिकॉर्डिंग अलाउड है. हमारे जो नॉर्मल जीमेल अकाउंट रहता है उसमें रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं रहता है. हाँ, मतलब वो ऑनलाइन ही स्टोर होता है क्या? एक्सबॉक्स मतलब ये ऐसे मतलब गूगल मीट के जैसा ही क्या एक्सबॉक्स? हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा कोई बात. Okay guys, so Prabal, tell me your final time, okay, at that today at the evening, so we can start tomorrow. कल 9 बजे किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए, राइट? नो सर. ओके, चलो बाय गाइस, बाय प्रबल, बाय सौरभ, बाय आदित्य, बाय अमृत, बाय. सर थँक्यू सर. थँक्यू सर, बाय.